So welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome to Sadhava classes. Today we are going to learn a lesson known science lesson of standard 6. The name of the lesson. See, the first lesson is natural resources, air, water and land. Okay, natural resources, air, water and land. So what do we mean by natural resources? क्या होता है natural resources? What do we mean? The things we get from the nature. The things we get from the nature इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स. ओके, सो हमको नेचर से क्या क्या मिलता है वो सब आपको आता है नेचुरल रिसोर्सेस में. ठीक है, ते सर्व कशामध्ये येतं नॅचरल रिसोर्सेस. यू कॅन सी द डायग्राम. इन दिस डायग्राम atmosphere is given, hydrosphere is given, lithosphere is given. Atmosphere is what? Atmosphere is the covering of air around the earth. What is atmosphere? Covering of the air around the earth is known as atmosphere. Then hydro means water. Hydro means water. Now the amount of water available on the earth. ठीक है, so जो भी वाटर है ओशन में या फिर समंदर में है, the rivers, all the water comes in the hydrosphere. And litho means stone, दगड़. Okay, जिसको हम पत्थर कहते हैं. litho means stone. Okay, so these are the three spheres of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Now there are some questions asked to you. Where do we see the birds? Yes, tell me, where are the birds? Birds कुठे आहेत? पक्षी कुठे आहेत? Where are the birds? Birds are seen in the, they are flying in the sky. They are flying in the sky. Hi. Therefore, they are the parts of atmosphere. They are the parts of atmosphere. Now you can see, where is the cow grazing? Where is the cow grazing? Cow कहाँ graze कर रही है? She is grazing on the land. So it is the part of lithosphere. Now locate the trees and the road. You can locate trees and road. See, here is the road. Okay, and here are the trees. Then where does the river come from and how does it flow? So river comes from the, आपको पता है, river comes from the mountain. नदी कुठून तयार होते हैं? डोंगरातून नदीचा उगम होतो. रिवर, नदी कहाँ से शुरू हो जाती है? पहाड़ों से शुरू हो जाती है. Okay, and how does it flow? It flow towards the slope. आवाज बंद ठेवायचा. Mute your sound. Mute your sound. Then where is that aeroplane? Yes, this you can see the aeroplane is here. This is the aeroplane. Now hmm, this is the aeroplane. देखो, this is the aeroplane you can see, and it is flying in the sky. Where are the fish seen? Where are the fish seen? Fish are in the water. Fish are seen in the water. And on what is the sailboat floating? You can see the sailboat. It is floating on the water. कुठे ते पाण्यावर तरंगत आहे. It is floating on the water. Now these are all, जे काय आपण बघतो ना, water है, air है, land है, these are all the natural resources. देखो, so these are all the natural resources. You can see that the air, water and the land are the factors important for sustaining. Okay, they are the important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called as natural resources. We know very well that air is required for us to survive. अगर हमको air नहीं मिली, हवा नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे. We may die because of the unavailability of water. हवा जर मिळाली नाही तर आपण मरून जाऊ. Similarly, water, पानी पर आपल्याला पाहिजे, हमको पानी भी चाहिए, उसके सिवाय हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. As well as land. Land is required to produce food. Land is required to produce food and to live on. So these are the things which are required for sustaining, रहने के लिए important है, and fulfilling their basic needs. Okay, we are our basic needs. So what are our basic needs? Yes, tell me. Anybody can tell me. What are our basic needs? आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे. Okay, so Sir, food, air, water, food. No. Food, shelter. and shelter. Yes, food, shelter, and clothes. लक्ष द्या. Food, shelter, Shelter and clothes. clothes. Food, shelter, clothes. These are our basic needs. ये आपला basic need है. Food मतलब खाना चाहिए हमको खाने के लिए. After that we require shelter. राहायला जागा पाहिजे. निवारा म्हणतो त्याला आपण. Okay, and clothes. Okay, clothes.
Clothes are required to protect our body from the environmental conditions. उसके बाद आता है हमारा हेल्थ. ओके, क्या आता है हमारा हेल्थ. एंड आफ्टर दैट, हेल्थ के बाद आफ्टर दैट योर एजुकेशन. ओके, सो सी जो फर्स्ट हमने बताया ना, दिस ये देखो ये तीन, दिस आर द बेसिक थिंग्स, बेसिक नीड्स, दिस आर द बेसिक नीड्स. अभी उसमें क्या होता है, जब ये तीन फुलफिल हो जाएंगे, आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, वी रिक्वायर हेल्थ. आपका हेल्थ अच्छा चाहिए, एंड देन यू रिक्वायर एजुकेशन. समझा अभी सबको? दिस आर द बेसिक नीड्स ऑफ अवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. नाउ ये बाकी भाई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, द इम्पोर्टेंट जो भी है वही बता रहा हूँ. पूरा पढ़ने के लिए वी डोंट हैव दैट मच. जो भी है वही बता रहा हूँ मैं. Important things we are taking. Now, if you see, this is the Earth. This is the Earth. If you see from the universe or space, this is the Earth, and from जो Earth का पूरा area है, out of the total area of the Earth, 71% is water. और लैंड कितना है हमारा, जमीन कितनी है, इट इज ओनली 29%. समझा? सो अवर द लैंड इज ओनली 29% एंड वाटर इज 71% ऑन द अर्थ. देखो ये जो ब्लू कलर है ना, दैट इज द वाटर. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर. प्लीज म्यूट योर साउंड. आवाज कोणाचा बाळांनो प्लीज बंद करायचा आहे. जीवदान आला, जीवदान, जीवदान आला. गुड. ओके, नाउ जस्ट अ मिनिट. एक सेकंड बाळांनो. आवाज बंद करायचा आहे. हु साउंड इज, आवाज बंद ठेवायचा आहे. प्रगती, प्रथमेश. म्यूट योर साउंड. चलो, back to the study. Now you can see that the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. ये आपका definition है, इसको मैंने underline किया. Then the surface of the earth comprises water and land. देखो water is present in 71% of the earth and land is present in 29% of the earth. समझा? तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, water है. मतलब the presence of water is there. Now इट इज द हाइड्रोस्फीयर. सो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर. इट इज द हाइड्रोस्फीयर. और जो लैंड है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर. इट इज नोन एज लिथोस्फीयर. गेटिंग? समझा अभी इसको सबको? नाउ लेट्स गो अहेड. आई एम टेकिंग ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं रहा. नाउ अभी देखो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी गेट many components in solid, liquid, and gaseous form as a resource. As a resource, they are known as natural resources. They are known as natural resources. We get them from the nature. आपल्या घरात पाणी तयार होतं का रे? नाही. माती तयार होते का? नाही. ओके, सो वी गेट फ्रॉम द नेचर. हवा तयार होते का? नाही. सो वी गेट them from the nature. So first is air. What are the 5 layers of the atmosphere? ये आपको बाद में बताता हूँ मैं. चलो, first is air. First one is the air. Now what is air? आपको पता है, the air in the atmosphere around the earth contains, क्या क्या होता है earth में? देखो, it contains nitrogen. देखो यहाँ पे है, just a minute. So it contains nitrogen. देखो nitrogen, can you see nitrogen? How much? It is 78%. How much is nitrogen? It is 78% of the earth total. Sorry, air, total air. Then the second is oxygen. It comprises 21%. It comprises 21%. देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है. Then we have oxygen 21%. Then you have carbon dioxide 0.03%. Then some inert gases like argon, neon, krypton, xenon 0.9%. And other constituents. Other constituents में क्या आता है? Water vapor, some other things are there in the other constituents. क्या है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे. So the atmosphere contains 80% of the total mass of the gas. In this portion, 19% of the stratosphere.
देखो now some uses of the gases in air. What are the uses? Let's see. Nitrogen. What are the uses of nitrogen? देखो, helps living things to build the necessary protein. हमारे इस बॉडी में जो प्रोटीन है, देखो हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन है ना, आप प्रोटीनियस डाइट लेते हो, दूध लेते हो, अंडा लेते हो, चिकन मटन है, या फिर सम स्प्राउटेड जो भी हमारे बीन्स है वो भी लेते हो, दैट कंटेन्स प्रोटीन, तो इससे हमारी बॉडी बनती है. ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी. देन इट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. अमोनिया इज अ गैस, उसका यूज होता है इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड्स. ओके, एयरटाइट पैकेजिंग में क्या होता है, अमोनिया होता है और नाइट्रोजन भी होता है. द सेकंड वन इज ऑक्सीजन. यू नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर, हमें ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. वी मे और मे नॉट लिव. वी मे नॉट लिव मतलब हम जिंदा रह नहीं पाएंगे. मे मतलब मे नहीं, मे नॉट लिव, मर जाएंगे. ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबर्शन. कंबर्शन मतलब जलन, फॉर फायरिंग, फायर, फॉर फायर पर्पज, जलने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंट होता है. Then third one you have carbon dioxide. What is carbon dioxide required for? It is plants use it for the production of their food. Okay, जो भी plants होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाने के लिए they require carbon dioxide. It is also used in extinguisher, fire extinguisher. Fire extinguisher पता है ना आपको, आग लागल्यानंतर ते आपण वापरतो ना बाटल्या वगैरे, मोठे मोठे बाटल्या असतात लाल कलरचे, दे आर फायर एक्सटिंग्विशर, और उसमें हमको क्या यूज होता है, कार्बन डायऑक्साइड होता है. देन यू हॅव अर्गॉन. अर्गॉन का यूज कुठे होतो, इलेक्ट्रिक बल्ब, आपले बल्ब असतात ना त्याच्यामध्ये. इन देन यू हॅव हेलियम. देन यू हॅव हेलियम. प्लीज डोंट टॉक गाइस, प्लीज अनम्यूट योर साउंड. Helium. Helium is used for obtaining low temperature and also for generating lift in the airship. Yes, Rutuja बोल. ऋतुजा बोल. चैट कर, क्या प्रॉब्लम है क्या बाळा? ऋतुजा, yeah, चलो. Neon is used in decorative lights. It is used in decorative lights and for street lighting. Then you have krypton. Krypton used in fluorescent tubes. It is used in fluorescent tube. ऋतुजा बोल बाळा, काय झालं? It is used in fluorescent tube. Then you have xenon. There you have xenon. Xenon is used in flash photography. कहाँ पे use होता है उसका? Flash photography. Yes, guys. What's the problem? Yes, just a minute. Huh? चलो, next point. Always remember. What we need to remember, देखो क्या ध्यान में रखना है. The living world on the earth is sustainable. Sustained. देखो. The living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and the constituents of air. The atmosphere is a very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life. Now, but it prevents the harmful elements and reaching the earth. It is in the atmosphere that fog, clouds, snow, and rains are produced. Okay, what happens? So, see, this is our air, earth है, ये अपना earth है. So what happens, देखो ये जो हमारे रेज आते हैं सन के रेज, दे आर फिल्टर्ड समवेयर. वो क्या पे होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, एक ओजोन का लेयर होता है यहाँ पे हमारे अबव द अर्थ. तो सो द एयर, द यहाँ पे ओजोन होता है, ओजोन, OZONE. इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमोस्फियर. नाउ ये क्या करता है, इट फिल्टर्स. ये क्या करता है, ये जो रेज आते हैं ना यहाँ पे, इसको फिल्टर करता है, और जो यूवी रेज इनको ऑब्जर्व कर लेता हो. यूवी रेज होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व कर लेता है कौन, ओजोन. ठीक है, तो हमारे बाकी जो रेज हमारे यहाँ पे आते हैं, जो हमारे अर्थ पे आते हैं, जो आपल्या पृथ्वीवर येतात, दे आर फ्री फ्रॉम द यूवी रेज. अगर ये यूवी रेज हमारे यहाँ पे आ गए ना, तो क्या होगा कि वी ऑल गेट सम स्किन प्रॉब्लेम्स. आपल्याला काय होतील, त्वचेचे आजार होतील, त्वचेचे वेगळे प्रॉब्लेम्स होतील, स्किन प्रॉब्लेम हमें हो जाएगा. तो इसके वजह से ओजोन, दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट. ओके, यस, दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, सो दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट. विच लेयर इज, इट इज ओजोन लेयर. अभी ओजोन लेयर जो है, इट इज अ बैलेंस. ये क्या है, एक्चुअल बैलेंस देगा ओजोन लेयर. अभी ओजोन लेयर को क्या हुआ, देयर आर सम गैसेस विच आर प्रोड्यूसिंग और विच आर थिनिंग दिस लेयर. इसको उसको वो क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं. दे आर थिनिंग दिस लेयर. तो क्या हो रहा है कि इसको कम होने के बाद में इसका जो वर्क है, प्रॉपर फंक्शन है यूवी रेज का, वो पूरा नहीं हो रहा है.
ओके, वो हम बाद में देखेंगे, विल सी इन द ओजोन लेयर, और जो भी आपका है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वगैरह, तो उसके आगे है अपने को, विल सी दैट। नो, सी, यू कैन सी व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन थ्री पिक्चर्स। सी, ये सब एयर पोल्यूशन है, ये सब क्या है आपके एयर पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द थिंग्स, ये सब एयर पोल्यूशन है। दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये देखो ये फर्स्ट वाला है, दिस इज बिकॉज ऑफ द गैसेस कमिंग आउट ऑफ द कंपनीतून गैसेस बाहर पड़ता है। दिस इज, देखो हमारे ये कार है, मोटरसाइकिल है, इसके इससे जो धुआं निकलता है वो है। एंड दिस इज फॉरेस्ट फायर। थर्ड वन क्या है, फॉरेस्ट फायर, जंगलात लागलेली आग, जंगल में लगने वाली आग, त्याला म्हणतो वनवा। ओके, इट इज फॉरेस्ट फायर। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग व्हाट हैपेंस सम, इसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन, वी कॉल इट एज अ एयर पोल्यूशन, त्याला आपण काय म्हणतो, एयर पोल्यूशन, वी कॉल इट एज अ एयर पोल्यूशन। नाउ because of this, harmful substances released in air through the combustion of fuels. बघा, आपण पेट्रोल वापरतो, डिझेल वापरतो, घरामध्ये आपल्या केरोसिन, रॉकेल वगैरे आहे. सो बिकॉज ऑफ द बर्निंग, रॉकेल आहे किंवा लाकूड आहे, बिकॉज ऑफ द बर्निंग, कंबशन म्हणजे बर्निंग, काय काय कोणते कोणते गॅसेस ऍटमॉस्फिअर मध्ये पडतात, नायट्रोजन डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, देन यू हॅव कार्बन डायऑक्साइड, carbon monoxide, sulfur dioxide and soot. These are the harmful gases. हे सगळे गॅसेस कसे आहेत आपले, हार्मफुल. These are the harmful gases. These are the harmful gases. ठीक है, so this is the air pollution. ये हमने क्या पढ़ा, air pollution. So देखो ओजोन लेयर, मैंने आपको बोला था ना ओजोन लेयर, ये अभी आ गया, देखो ओजोन लेयर आपको पढ़ने में आ गया है। 16th September is celebrated ozone layer. Now, क्या है ओजोन लेयर? So there is a layer of ozone. Ozone is O3. Ozone is O3. ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। Now, it is present in the stratosphere. It is present in the stratosphere. It is present in the stratosphere. Now, ozone gas is not directly useful for the survival of living things. Yet, it is important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. This, okay, ये क्या करता है, this UV rays, the UV rays coming from the sun are very harmful for living things. मैंने आपको बोला था कि जो भी UV rays sun से आते हैं, they are harmful for the living things. Therefore, the ozone क्या करता है, उसको absorb करता है, ओजोन गैस क्या करता है, उसको absorb करता है। absorb म्हणजे काय करता है, त्याला शोषून घेतो, उसको उसको खींच लेता है, पूरा बंद कर देता है, उसको पैक कर देता है वहां पे। ओके, सो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है, द लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, हमारी जो भी लाइफ है इट इज प्रोटेक्टेड, समझा। नाउ द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड, वो उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2। ओके, ये कहाँ पे यूज होते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं और रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, समझा। तो हमारे घर में जो एयर कंडीशनर AC असेल, रेफ्रिजरेटर असेल, तो उसमें ये गैसेस यूज होते थे, पहले यूज होते थे, अभी तो उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो अभी ये ज्यादा यूज नहीं हो रहे, बट स्टिल समवेयर जो पुराने हैं तो उसमें वो हो गए शायद। नाउ, तो 16th September is celebrated as ozone day, is ozone protection day, समझा। so 16th September is celebrated as ozone protection day, सबको ध्यान में रखना है। और भी आपको कुछ दिखा देखो यहाँ पे, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कुछ है यहाँ पे, क्या है देखो, in metropolitan cities like Mumbai, Pune, Nagpur, boards are displayed at the places of heavy traffic to show the proportion of various constituents in the air. जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है ना, तो उस पर आपको ऐसा बोर्ड दिखेगा। ओके, इन दिस बोर्ड दिखे आपको ओजोन कितना है, CO कार्बन मोनोक्साइड कितना है, NOx मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, उसके बाद आपको PM10 है, PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, PM मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। PM10 है, PM2.5 है, मैं PM दिखाता हूँ क्या है आपको यहाँ पे, PM इज व्हाट, सो PM इज व्हाट, पार्टिकुलेट मैटर्स। उसमें उसके दो है, एक तो PM10 है और उसके बाद है आपका PM2.5। PM10 है और क्या है, PM2.5। डोंट टॉक गाइस, प्लीज डोंट टॉक। ओके, सो PM10 एंड PM2.5 ये जो पार्टिकल्स के साइज है,
ये हमारे कब होते हैं, जब पोल्यूशन होता है, तो ये सब हम क्या करते हैं, वी डिसाइड दिस फैक्टर्स नाउ. What would have happened if there were no air on the earth? अगर एयर नहीं है तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं. Now the second thing is water. Second thing is water. पानी. आपको पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए. पाणी किती महत्वाचं आहे आपल्याला. नाव बघा आपल्याला दिवसात. येस. नाव पर्पज ऑफ. आवाज बंद ठेवायचा आहे. कोणाचा आवाज येतोय गाइस? प्रथमेश वांद्रे प्लीज म्यूट युअर साऊंड. पर्पज ऑफ वॉटर. ओके. आंघोळीला बाथ. किती आंघोळीला पाणी वापरता तुम्ही? मोजा आणि सांगा मला उद्या. देन ब्रशिंग ऑफ टीथ. दांत घासायला किती पाणी लागतं बघा. वॉशिंग क्लोथ. कपड़ा धोने के लिए कितना पानी लगता है? कपड़ा और बर्तन धोने के लिए. मॉपिंग द फ्लोर. जमीन पुसायला म्हणजे आपल्या घराची लादी पुसायला किती पाणी लागतं? ड्रिंकिंग. तुम्ही किती पाणी दिवसाला पिता? कुकिंग. किती पाणी लागतं? ओके. अप्रॉक्सिमेटली कॅल्क्युलेशन करून मुझे बताओ कितना आता है. मम्मीला विचारा, पप्पाला विचारा आणि अंदाजे सांगा. मला उद्या पाठवा किती उत्तर बघा. सो वी यूज लॉट ऑफ वॉटर थ्रू आउट द डे. बहुत सारा पानी हम दिन भर यूज करते हैं. हे पाणी आपल्याला कुठून मिळतं? व्हॉट इज द सोर्स ऑफ वॉटर? इज द रेन. इन नेचर वॉटर अकर्स इन 3 स्टेट्स. वॉटर किती मिळतात? 3 स्टेट्स मध्ये आपल्याला मिळतं. बरोबर. आईस म्हणजे बर्फ. ओके. कुठे मिळतो तुम्हाला? हिमालय किंवा तिकडे बर्फ. देन यू हॅव लिक्विड म्हणजे वॉटर आपलं आहे. अँड गॅसेस म्हणजे वॉटर वेपर. गॅसेस म्हणजे काय? वॉटर वेपर. So therefore, many substances dissolve readily in water. Okay, water does not have color, taste or odor. ये तुम्ही शिकलात स्टँडर्ड 4-5 में आपने पढ़ा है कि a pure water, okay, शुद्ध पानी, a pure water have no color, no taste and no odor. उसको त्याला कलर नसतो, रंग नसतो, टेस्ट चव नसते आणि ओडर म्हणजे वास सुद्धा नसतो. Now many substances dissolve readily in water, therefore it is known as universal solvent. Okay, पाण्यामध्ये बरेचसे पदार्थ विरघळतात. इसलिए उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ऑफ द ब्लड. ब्लड आहे ना आपल्या शरीरामध्ये. द ब्लड ऑफ एनिमल्स अँड द सॅप इन द प्लांट्स. येस गाइस. हुज देयर? सर 6 क्या बोल रहा है बेटा? समझा नहीं. आपको क्या कहना था? मैं समझा नहीं राज. फिर से पूछिए बेटा. सर मैं बहुत लिख रहा था, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अभी दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है स्क्रीन? सर छोटे साइज में दिख रहा है. छोटे साइज में किस तरह? बहुत बड़ा किया मैंने स्क्रीन बेटा. एक सेकंड मैं फिर से थोड़ा बड़ा करता हूँ. बहुत बड़ा स्क्रीन है. चलो लेट मी अगेन मैक्सिमाइज करता हूँ थोड़ा सा. अभी दिख रहा है राज? राज यस सर. अभी दिख रहा है? ओके चलो. Now the blood in animals, see. यस. Okay, the blood in animals and the sap in plants contain a very high proportion of water. हमारे जो blood है और हमारे जो blood है उसमें 80% water है. समझा? 70 to 80% water है in our blood. So no living thing can survive without water. पानी नहीं है तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा. No living thing. Plants, animals, birds, कोई नहीं जिंदा रह पाएगा. Therefore, इसको क्या कहते हैं? वाटर इज लाइफ. पानी को क्या कहते हैं? जीवन. पाणी काय आहे? ऋतुजा जीवन आहे. बरोबर की नाही स्वराज? स्वराज बरोबर की नाही? ऋतुजा, स्वराज. पाणी काय आहे? जीवन आहे. बाकी सगळ्यांची नाव घेत बसत नाहीये. सो पाणी काय? जीवन आहे. पाण्याशिवाय आपण जिवंत राहू शकत नाही. वी कॅनॉट लिव्ह विदाउट वॉटर. पानी नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. Therefore, it is the life. Water is the life. उसका बचत करो पानी का है, इसलिए हमको उसको क्या करना है? संभाल के रखना. चलो नेक्स्ट. अभी पानी तो है लेकिन ये पानी हमारे ज्यादा यूज में नहीं होता. देखो वाटर तो है बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ. क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों होता है? देखो इतना पानी तो फिर भी हमारे यहाँ पे पानी की जो भी एडेक्वेसी है वो क्यों नहीं है? देखो सो वी हैव सम रीजंस. क्या रीजन बताता हूँ आपको. देखो मैं फर्स्ट हमारे सी ओशन में, समुद्र में और महासागर में, ओशंस में 97% वाटर है एंड विच इज सॉल्टी वाटर. आपको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है. तो हम पी सकते हैं क्या? नहीं. अगर आप समुद्र का पानी पियोगे तो आप मर जाओगे. ओके, बिकॉज देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज देयर. हो, तुम्ही जर समुद्र पाणी पिलं तर आपल्या पोटामध्ये एवढी काही सॉल्ट जमा होईल की सगळ्यांना मुतखडा होऊन जाईल पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि आपण सगळे जगात. देन 2.7% वाटर
ओके, हे जे 2.7% वॉटर आहे हे काय आहे तुमचं ग्लेशियर म्हणजे आईसच्या फॉर्म मध्ये. कशामध्ये आहे? आईसच्या फॉर्म मध्ये. तर तुम्हाला जर तहान लागली तुम्ही हिमालयात जाऊन बर्फ आणाल का? नाही. जाणार का? नहीं ना, जाएंगे हिमालय में, चलो हिमाचल में प्रदेश में जाएंगे और बर्फ लेके आएंगे, बहुत प्यास लगी है. नो, बिकॉज इट इज, तो उसका भी परसेंटेज 2.7 है. तो 97 एंड 2.7 कितना हो गया? 99.7. तो बचता कितना है यहाँ पे? 0.03. सो जो इतना जो वाटर है ना 100 में से सिर्फ 0.03 जो वाटर है वो हमें मिळता आहे. दॅट इज द फ्रेश वॉटर. इसलिए हमें पाणी की क्या करनी आहे? बचत करनी आहे. कळलं का बाळांनो? म्हणून पाण्याची बचत करायची आहे. पाणी आलं नळाला म्हणून लगेच चाळीच्या चाळी धुवून काढतात लोक. असं करायचं नाही. वॉटर इज व्हेरी प्रिशियस. समझा? सो द वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग इज ओनली 0.03. इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कैसे किया है, देखो यहाँ पे. ओके, एक मिनट. हाँ देखो कैलकुलेशन 97% प्लस 2.7% कितना हो गया? 99.7% इसके एडिशन. तो 100 में से 99.7 माइनस करो, यू गेट 0.03%. समझा ना? तो फाइनल थिंग यू हैव दी फाइनल थिंग. देखो अभी जो लास्ट वाला है ना, मैं आज नहीं लेने वाला लैंड, हम कल देखेंगे. जो भी लैंड है ना हमारे कल देखेंगे. आज के सेशन में नहीं लूंगा मैं. थोड़ा जो दिमाग ऊपर जाएगा आपके दिमाग के ऊपर से. सो व्हाट वी लर्न, मैं थोड़ा सा फर्स्ट फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ. व्हाट वी लर्न टुडे, थोड़ा फास्ट रिवाइज कर देता हूँ. No. Natural resources. What are the natural resources? The resources we get from the nature are called as natural resources. If you see this diagram, you can see that the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere is there, are there, sorry. Now, air, water, and land are the factors important for sustaining of living things or living world on the earth and for fulfilling their basic needs. This is the earth, and we can see that the 71% of the earth is occupied by water and land is occupied by 29%. So it is hydrosphere and lithosphere. And the air is what? Our atmosphere. The covering of air around the earth is called as atmosphere. We have also seen the proportion of the proportions of the various gases in the air. We can see that the maximum proportion is of the gas nitrogen. उसके बाद है हमारा oxygen, and then comes other gases. Then come other gases. Then what we have also seen some of the uses of the gases. तो आपको क्या करना है? देखो मैं जो जो टिक करता हूँ उसको आपको लिखना है. ओके, मैं जो टिक करता हूँ ना उसको आप लिखना है. फर्स्ट चैप्टर का नेम लिखो, उसके बाद ये लिखो. देखो समझा? इसको टिक या फिर मैं इसको गोल करता हूँ. ये इतना लिखो नेचुरल रिसोर्सेस में. देन व्हाट, उसके बाद क्या लिखना है आपको? देखो देन ये डायग्राम बनाओ. दिस वन 1.2 का डायग्राम देखो ना. अर्थ नहीं बनाना, ये वाला बनाना है, दिस वन. ठीक है. देन उसके बाद आपको एयर का ये एक डायग्राम बना दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का. उसके बाद त्याच्यानंतर तुम्ही हे लिहून काढा, सम युजेस ऑफ केसेस हे लिहा. देन हे हा जो पार्ट आहे ना, हार्मफुल सबस्टेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, हे लिहून काढा. ओझोन लेयर का जो भी इम्पॉर्टंट जो भी लिया है वो हे लिहून काढा. वाटर मध्ये ये मत लिखो, ये लिखो, है ना, ये जो वाला. इन नेचर वाटर अकर्स इन द वाटर स्टेट्स, हे लिहून काढा. ये पूरा जो कलर में. उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाओ, अच्छा वाला डायग्राम वो है. ठीक है. सो इतना आपको पढ़ाई करना है. सो टुमारो, वेट, टुमारो विल कंप्लीट द चैप्टर. ठीक है, तुम्हारा चैप्टर टुमारो कंप्लीट कर दूंगा मैं. एंड जो भी है हम पढ़ेंगे आगे क्या है आपका चैप्टर. सो एनी डाउट अगर कुछ है तो मुझे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछो या फिर अपना